NAC ने डायरेक्टली हमारे स्टूडेंट्स को अप्रोच किया थ्रू ईमेल एंड उनसे फीडबैक लिया यूनिवर्सिटी के बारे में. We achieved a very high grade on the student satisfaction survey as well. And then last week, NAC peer team comprising of eminent academicians, जो vice chancellors of universities और leading researchers and academicians आए थे. They were a group of 7 people, a team of 7 people, जिन्होंने हमारी पूरी यूनिवर्सिटी में in a duration of 3 days they went to our teaching departments, हमारी central facilities, हमारे research, हमारा hostels, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, इनफैक्ट हमारे ऑफसाइट कैंपसेस भी हो गए और अपना सारा कंसोलिडेटेड ग्रेड, क्वालिटेटिव ग्रेड उन्होंने हमको NAC को हमारा सबमिट किया. बेस्ड ऑन द क्वांटिटेटिव डेटा विच हैड अ कंपोनेंट ऑफ 70% एंड क्वालिटेटिव डेटा विच हैड अ कंपोनेंट ऑफ 30%, हमको ये कल जो लास्ट नाइट हमारा ग्रेड आया है 3.72. एंड हमारे देवर अबाउट 7 पैरामीटर्स जो हमको NAC ने हमारा पूरा जो फ्रेमवर्क था असेस किया. पहला था टीचिंग लर्निंग, सेकंड था पहला था करिकुलर एस्पेक्ट्स, सेकंड वाज टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, थर्ड वाज रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन, फोर्थ वाज स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, फिफ्थ था गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, लीडरशिप गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, देन वाज इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस. और जो हमने कल रिपोर्ट देखी है अपनी जो पोर्टल पे आई है, हमको ईमेल से भी आई है, वी हैव स्कोर्ड अ फुल 4 on 4 on parameters like governance, leadership and management, on infrastructure and learning resources, and a 3.9 something on our institutional values and best practices. बाकी एरियाज में भी वी आर अबव 3.5, जहाँ उन्हें रिकमेंडेशंस दी है. दैट विल बी आवर स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट साइकिल. And again sir, if I may share that, हमने एक और कल जब सारा पोर्टल में देखा, what we realized was University of Jammu cycle 4 में पूरे कंट्री में there are only 8 universities which have got A++, and university stands on the 4th rank based on the CGPA. Andhra University, Bangalore University and GNDU are the only universities जो हमारे से ahead है in cycle 4 accreditation. So I think under the leadership of our Vice Chancellor, जहाँ हमने पिछले 2 साल से इतने नए quality initiatives लिए towards teaching, learning, towards infrastructure, towards research, we have been able to achieve this, and it's a great moment for, I feel, not only the academic fraternity of the University of Jammu, but for the entire region of Jammu. So with this, sir, in fact 2024 I can say is a very good year for the University of Jammu. हमारा पहले NRF में for the first time हम लोग 50th rank में आए थे. We barged in the top 50 institutions of the country, and now we are an A++ university. Thank you so much, sir, for all your guidance and all your support. And may I now request you to please say something. Thanks, Ginny. At the outset, I express my gratitude to Honorable Chancellor Shri Manoj Sinha ji, Honorable Lieutenant Governor Jammu Kashmir Union Territory, for his visionary leadership and support, and the faith, the trust that he deposed in the university, in schools. And as Director Ginny Dogra ji said, that for the first time Jammu University figured within 50 in NRF ranking. Apart from that, this is the another major achievement, and that substantiates the NRF ranking position. Even more than that, जम्मू विश्वविद्यालय कश्मीर का पहला विश्वविद्यालय हुआ है जो NAC के द्वारा A++ एक्रेडिट किया गया है. So that Jammu University has created the history
in the JNK to be the first university accredited by NAAC as A++. And as Dr. Giri Dogra said, we have entered into the 4th cycle. So our assessment was on the 4th cycle of that NAAC assessment. And in that 4th cycle, total 8 universities have been accredited A++ in India. Last 3 years. In last 3 years. And we are at the 4th. If you see that the CGPA scored 3.72. So keeping that in mind, we are at the 4th position. So it's a big achievement, and this achievement would not have been possible without the support of the government. And I would like to share with you that when I requested Honorable Chief Minister कि NAAC की मेरी टीम आ रही है और क्या संभव है कि एक डिनर आपके द्वारा आयोजित हो सकता है, उन्होंने कहा बिल्कुल। और न केवल चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने रेजिडेंस को डिनर रखा, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर और हमारी एजुकेशन मिनिस्टर साहिबा भी मौजूद रही। साथ में जब मैं ऑनरेबल अपने चांसलर साहब से मिला तो उनसे भी रिक्वेस्ट किया और उन्होंने कहा बिल्कुल करेंगे। तो 2 डिनर, एक ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जी के द्वारा दिया जाना और दूसरा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के द्वारा दिया जाना। उस डिनर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का रहना और एजुकेशन मिनिस्टर का रहना यह बतलाता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, चाहे वो चांसलर साहब हों और चाहे वो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हों या अन्य मंत्रीगण हों, वह शिक्षा को लेकर के कितना सजग है। और इसीलिए शिक्षण संस्थाओं को जितना आगे बढ़ाने के लिए प्रयास हो सकता है, सामूहिक रूप से पूरी सरकार मिलकर के यह कर रही है। और उसी का यह परिणाम है कि जम्मू विश्वविद्यालय A++ आया। साथ में इसकी तैयारी 3 साल से, जब मैं ज्वाइन किया था तब से चल रही। और मैं कहना चाहूँगा कि मुझे जो जम्मू विश्वविद्यालय में ओनरशिप दिखाई पड़ी है, वह ओनरशिप मुझे अन्य किसी शिक्षण संस्था में दिखाई नहीं पड़ती है। और इस बात को जो टीम NAAC आई थी उसने इंडोर्स किया कि जो कोऑपरेशन, जो कोऑर्डिनेशन जम्मू विश्वविद्यालय में देखने को मिला है वह अन्य विश्वविद्यालयों में नहीं मिलता है। और ये क्रेडिट अगर जाती है तो विश्वविद्यालय प्रशासन के जो लोग हैं, डीन एकेडमिक अफेयर्स, डीन रिसर्च स्टडीज, डीन प्लानिंग, DSW या हमारी जो स्टीयरिंग कमेटी थी उसके भी मेंबरान यहाँ बैठे हुए हैं। लंबा हो जाएगा अगर हम नाम लेंगे उनका तो सभी लोगों ने मिलकर के काम किया। और साथ में हर एक अध्यापक, हर एक डिपार्टमेंट से, हर एक ऑफिसर, हर एक नॉन टीचिंग, हर एक नॉन गस्टिंग, सभी के सहयोग से आज वो दिन आया है।